Academy YouTube channel. Today we are going to solve Sainik School Entrance Exam Paper 2016 of Mathematics and Reasoning. Before we start paper, I want to tell you that Royal Defence Academy YouTube channel provide online classes for military school, Sainik School and RIMC. We also provide test series, online test series, live classes and study material for Sainik School, military school and RIMC. Those students who want to prepare in offline classes, we are also provide school, hostel and coaching facility for military school, Sainik School entrance exam. For that, you may call me on my number for online and offline classes 8769422006. That is my personal number for any inquiry, for any query relating to फॉर्म कैसे भरना है, रिजर्वेशन कैसा है, कहाँ के लिए अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए, किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, कोई क्यूरी है मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC से रिलेटेड, तो यू मे कॉल मी ऑन माई नंबर 8769422006. लेट्स वी स्टार्ट आवर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पेपर. Your first question for Sainik School Entrance Exam 2016 of Mathematics is estimate the difference to the nearest 100. For that we have to be first of all get the difference 879. Your question is estimate the difference. That means हमें पहले difference निकालना है 338. After finding the difference, we have to be convert it into the nearest 100, and our answer is 500. That is your nearest 100. Your correct option for that is C option. Now next question. Question number 2. Write 15 meter as a percentage of 1000 kilometer. To find out the percentage 15 upon 1000. It is in meter and it is in kilometer. So first of all we have to be converted into 1500. 15 meter remains same. Now your next question is to convert 15 meter into the percentage of 1000 kilometer. That is your in meter 15 meter and it is in kilometer. First of all we have to be convert kilometer into meter. That is 15 meter and it's become 1000 into 1000. We all know that 1 kilometer consists 1000 meter. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. Now convert into percentage 15 upon 1000 into 1000 into 100. What we get? We get 15 upon 10,000. That means point after 4 digit. That's your answer. That means your answer is 0.0015. Correct option for that is D option. Now your next question, question number 3. You have to find out the LCM of 120, 210 and 225.
60 times 105, and 2 5 is not divisible by 2, then 2 30 times 105 remains as it because it's not divisible by 2, and 225 is not divisible by 2, then again 2 15 times 105 225, then 3 5, then you get here 35 and 75, again divisible by 3, 5 as it, 35 is not divisible by 3, 75 divisible by 3 25 times, then 5 1 time, 7 time and 5 times, then 5 1 time, that means it is 1 time 1 time 1 time. LCM इन सब को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. यू मल्टीप्लाई इट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7. What you get here, that is your 12,600. And your correct answer for that is D option. D is your correct answer and LCM is 12,600. Now your question number 4, arrange 1 upon 3, 3 upon 10, 5 upon 6, 2 upon 5. Make correction in ascending order. In ascending order, you have to find out LCM of denominator now LCM of 3, 10, 6, 5 is 30. 30 divisible by 3 10 times, 10 into 1 10, then 30 divided by 10 3 times, 3 3 is 9, then 30 divided by 6, 5 5 is 25, then 30 divided by 5, 6 times 6 2 is 12. Now pay attention, सबसे छोटा कौन सा है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, 9 अपॉन 30, दैट मीन्स 3 अपॉन 10. इससे बड़ा कौन सा है, 10 अपॉन 30, दैट मीन्स 1 अपॉन 3. इससे बड़ा नेक्स्ट कौन सा होता है, 12 अपॉन 30, दैट मीन्स 2 अपॉन 5, एंड योर लास्ट इज 25 बाई 30, 5 अपॉन 6, एंड यू हैव करेक्ट ऑप्शन इन इट इज सी ऑप्शन. C is your correct answer. Now question number 5, find the sum of 1 3 by 5, 2 7 by 10. 1 3 by 5 and 2 10 by 7 plus 2 7 by 10, convert into improper fraction. 5 1 5, 5 plus 3 8 upon 5. मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 10 20 प्लस 7 27, एलसीएम हो जाएगा 5 और 10 का 10, 5 से डिवाइड जाएगा 10 में 2 टाइम्स, 8 2 is 16, देन 10 डिवाइड बाय 10 1 टाइम, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 27, you get here 43 upon 10. Now convert into mixed fraction, 4 3 by 10. Your correct answer is A option. A is your correct answer. Now next question, question number 6. An aeroplane covers 1020 km in a hour. How much distance will it cover in 4 1/6 hour? So what we have to do, we have to multiply it. So what is the formula to find out the distance? Distance equals to speed multiply
टाइम, तो स्पीड इज 1020 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 4 1/6 कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction. So that means 6 4 is 24, 24 plus 1 25 upon 6. Now you have to be divide 1020 by 6 and it is divisible by 6 170 times into 25. What we get? You get here 4250. That is your correct answer. That means which option is correct? In is question number 6 is 4250 kilometer. Now your next option is for question number 7, convert it into Fahrenheit into degree Celsius. Convert 131 degree Fahrenheit into degree Celsius or Celsius scale. We use formula C upon 5 and C upon 5 equals to F minus 32 upon 9. Now we solve and place the value of degree Fahrenheit in the formula, that is C upon 5 equals to 131 minus 32 upon 9. What we get here? C upon 5 equals to 99 upon 9 equals to 11. C equals to 11 into 5 equals to 55 degree. And your correct option for that is C option is correct answer. Now next question. Question number 8. Question number 8, convert 2222 into days and hours. So divide it by 24. We know that in a one day there are 24 hours. तो 2222 में यदि हम 24 का डिवाइड देंगे तो what we get 92 days and what's left? Whatever is left in remainder, that is your hour, 14 hours. Your correct answer for 8 is B option is your correct option. Now for next question number 9. One of the two equal angles of an isosceles triangle measures 55 degree. Find the measure of all the angles of a triangle. As we all know that sum of angle of a triangle is 180 degree. तो जो हमें फाइंड करना है वो हमें मान लेते हैं लेट एंगल बी एक्स. ये एक्स एंगल कौन सा है? थर्ड एंगल है. ये थर्ड एंगल बी एक्स. तो हमें क्या करना है? जो इक्वल एंगल है उसके साथ में हम प्लस करेंगे. टू इक्वल एंगल्स हो गए 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे एंड इसको क्या कर देंगे हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110. व्हाट वी गेट 70 डिग्री. तो थर्ड एंगल क्या हो गया आपका? थर्ड एंगल इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो दैट मीन्स एंगल्स आर 55 55 55 और 70 degree. These are the three angles and your correct option for that is B, D option. D is your correct answer. Now question number next for question number 10. Find the radius of a circle whose circumference is 79.2. पाई को क्या यूज करना है आपको? इसमें पाई आपको यूज करना है 22/7. तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr. तो नाउ 2 की वैल्यू आपके पास आ गई. पाई 22/7. आर हमें फाइंड करना है. सरकमफ्रेंस हमारे पास 79.2.
तो r तो यहीं पे रह जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो 79.2 इंटू 7 और 22/2 नीचे चला जाएगा, इक्वल्स टू r आपका अब लेफ्ट रह गया है। तो हाउ मेनी टाइम्स 79.2 इंटू 7 44 इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 79.2 में 4 का डिवाइड जाएंगे तो ये जाएगा 1.8 टाइम्स इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.6 एंड योर करेक्ट आंसर फॉर दैट इज 12.6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन 75 and 225। You all know that square number 1 to 100 के बीच में जो भी स्क्वायर नंबर आते हैं वो सबने याद कर रखे होंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9। तो आपको इसमें बताना है कि 75 से लेके 225 तक किसका स्क्वायर आता है। तो हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है 64 जो कि 75 से कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 एंड 15 स्क्वायर आपस में होता है 225। लेकिन हमें बिटवीन पूछा गया है, तो वी हैव टू बी कंक्लूड दैट स्क्वायर नंबर बिटवीन 75 to 225 is 81, 100, 121, 144 and 169 and your last is 160, 196. That means D is your correct option. Now next question, simplify 125 minus 25 into 125 minus डिवाइड बाई 25 प्लस 25। तो हमें क्या यूज करना है इसमें, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। वैसे वी बोर्ड मास होता है वेंट्रिकुलम। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपस में वी नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, ये तीनों नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू बी डू द डिवाइड, तो यानी आपको इसमें डिवाइड करना है। 125 माइनस 25 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाई 25 प्लस 25। आपस में क्या आ जाएगा 125 माइनस 25 एज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द डिवाइड, नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 125 माइनस 125 प्लस 25, तो you get here 25 as a answer and your correct answer is B. Next question for that is 13. Sudha scored 223 marks. Sudha scored 23 marks out of 30 in maths and 29 marks out of 50 in Hindi. In which subject her performance better and by what percentage her performance is better? So you have to first find out कि कौन से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। फॉर दैट वी हैव टू बी फाइंड आउट द परसेंटेज, मार्क परसेंटेज। तो 23/30 यानी मैथ में क्या परसेंटेज उसके बन रहे हैं। तो 0 0 कैंसिल, वी गेट 230/3। 230 डिवाइड बाय 3 व्हाट वी गेट 76.6%। ये किसका परसेंटेज है, मैथ्स का है। नाउ हमें किसका फाइंड कर लेना है, हिंदी का परसेंटेज भी फाइंड कर लेना है हमें। हिंदी में क्या मार्क्स हैं, 29 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 इंटू 100, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड वी गेट 58%। तो दैट मीन्स किसका परसेंटेज अच्छा है, मैथ का।
और डिफरेंस क्या है इन दोनों का, 76.6 माइनस 58% एंड यू गेट 18.6%। तो यानी कि मैथ परफॉर्मेंस इज बेटर बाय 18.6% एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF 1394 and 3321. To find out the HCF, first of all we have to take two number, 902 as a divisor and 1394 as a dividend. Now 1 time 902, subtract it, what you get, 492. Now 902 becomes your dividend and 492 become your divisor। 492 माइनस करेंगे, व्हाट वी गेट, 410 आ जाएगा पास में। 410 का डिवाइड देंगे हम 492 में, और 492 का 410 1 टाइम डिवाइड जाएगा और यू गेट हियर 8 और 2 82। 82 का डिवाइड हम दे देंगे 410 में और 5 टाइम्स आपका डिवाइड जाएगा और यू गेट 410। तो दैट मीन्स 0 रिमाइंडर। योर HCF इज 82। अब 82 का हम डिवाइड देंगे 3321 में। 3321 में जब हम इसका डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स आपका जाएगा 328, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 41, हमारे को मिल जाएगा आंसर। 82 में हम 42 का डिवाइड देंगे, 82 हमारे पास में बचा रिमाइंडर 0। 82 2 टाइम्स गया, दैट मीन्स HCF जो हो गया वो हो गया आपका 41। योर करेक्ट आंसर इज 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. Juvida took a loan of 4,000 on 12% annually interest. After 3 years, how much money she will have to return? तो हमें इसका क्या निकाल लेना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट को निकालने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल हो गया आपका 4000, रेट हो गया 12%, टाइम हो गया 3 years अपॉन 100 आपके पास में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 इंटू 36। 40 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास में आ जाएगा 1440। 1440 को आप प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा पास में, अमाउंट आएगा। तो अमाउंट कितना हो गया, 4000 तो उन्होंने लोन लिया था और 1440 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टोटल अमाउंट हो गया 5440। दैट इज योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Find the square root of 6/9/36 and 5/41/16. तो सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं 6/9/36 एंड नेक्स्ट इज योर 5/41/16। ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट 225/36 और इसका आ जाएगा पास में 121/16। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बाहर आ जाएगा और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, ये भी बाहर आ गया। 121 11 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स योर आंसर इज बी। बी इज योर बी, नॉट बी। योर करेक्ट आंसर इज not here, given is not here, so that means you have to be divide it. Again you divide it, so what you get, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है। ध्यान से देखें ऑप्शन के अंदर 15/6, 11/6,
नहीं दे रखा है, किसी में भी नहीं दे रखा है, ना तो बी है ना सी ऑप्शन सेम आ रहा है, तो वी हैव टू चेक ए फॉर ऑल्सो। तो 6 2 जा 12, 2.5 एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 11 में 4 का डिवाइड देंगे तो 2.75। आपका करेक्ट आंसर है ए। तो बी केयरफुल कि आपको ऑप्शन में जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है जिससे कि आप कोई गलती ना करें। और आपका करेक्ट आंसर है 2.5 एंड 2.75। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन is 17. A baby elephant drinks around 12 liters of milk every day. How much milk will it drink in 2 years? So हमें क्या पता है, बेबी एलिफेंट पर डे 12 लीटर्स पीता है, 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज होते हैं। तो कितने ईयर्स तक पी रहा है, 2 ईयर, तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 2 ईयर इक्वल्स टू 365 इंटू 2 इक्वल्स टू 730 क्या हो जाएगा डेज, 730 डेज हो गया आपके। 730 डेज यानी कि पर डे कितना दूध पी रहा है, 12 लीटर दूध ड्रिंक करता है बेबी एलिफेंट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8760 लीटर। योर करेक्ट आंसर फॉर दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन is 18. John plans to tile his kitchen floor with square. यानी जो टाइल है वो कैसी है, स्क्वायर टाइल है, टाइल क्या है, स्क्वायर टाइल है। और किचन जो है उसका फ्लोर है आपस में 22 मीटर इंटू 10 मीटर वाइड। तो जॉन प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर टाइल है जिसका की साइड है 10 सेंटीमीटर और हिज किचन इज 2.2 मीटर लॉन्ग एंड 1.8 मीटर वाइड। हाउ मेनी टाइल्स विल जॉन नीड? तो जॉन को कितनी टाइल्स चाहिए? तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइल्स आ जाएगी। तो किचन कैसा है, रेक्टेंगल है, यानी 2.2 मीटर इंटू 1.8 मीटर। स्क्वायर टाइल है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब ऊपर देखिए मीटर में है, नीचे देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। एज वी ऑल नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाते हैं और आपके 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया पास 22 इंटू 18। यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, एंड यू हैव टू बी मल्टीप्लाई इट एंड यू गेट 396 एंड योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now your next question 19. There are 24 laddus in 1 kg. How many laddus will be there in 8 kg? तो 8 kg में कितने लड्डू होंगे, पहले तो ये पता लगा लेते हैं हम। 24 multiply by 8. When you multiply 24 by 8 you get 192 laddus. 192 laddus ये आपके पास में आ गया लड्डूस का। इफ 16 लड्डूस कैन बी पैक्ड, 16 लड्डूस जो है वो पैक किए जाते हैं 1 बॉक्स में। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दिस लड्डूस? दैट मीन्स 192 लड्डूस पैक किए जाते हैं एक कितने बॉक्स में, तो 1 बॉक्स में कितने लड्डू पैक कर रहे हैं, 16। 16 का हम डिवाइड देंगे एंड व्हाट वी गेट 12 बॉक्सेस। योर करेक्ट आंसर for that is D option. D is your correct option. Now your next question, question number 20. Find the mean of first 10 even number.
तो 10 इवन नंबर यानी पहला इवन नंबर होता है आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 देन प्लस 14 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 दैट इज योर 10 इवन नंबर्स। इन सबको प्लस करके क्या कर देना, हमें 10 का डिवाइड दे देना है और सम करने पे क्या आएगा 110 आ जाएगा और 10 का हम डिवाइड देंगे तो वी गेट 11। योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी। देन नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC एंड एंगल COD। तो आप इधर देखिए, ये वाला जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो BOC हो गया आपका 80 डिग्री, BOC हो गया 80 डिग्री एंड COD हो गया आपस में 100 डिग्री। तो यानी 80 और 100, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम क्या रूल लागू करते हैं, बॉड मास। वेंटिकुलम दे नहीं रखा है, बॉड मास आपस में 0.2 ब्रैकेट 3.5 माइनस 0.3 देन यू हैव 2.5 प्लस 1.3। तो सबसे पहले हमारा इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा और व्हाट वी गेट हियर वी गेट प्लस करेंगे 3.6 और 1.4 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5 आ गया आपस में। और इसमें फिर आपके क्या हो जाएगा 0.2 और 3.5 माइनस 0.3 देन 2.5 प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6.5। नाउ नेक्स्ट स्टेप 3.5 माइनस 0.3, इन दोनों को प्लस करते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 9। नाउ 0.2 3.5 2.7 यानी 3 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.7 आ जाएगा और 2.7 को हम 3.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.8। 0.8 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.16। What we get answer? We get answer D. Next question for question number 24. Find out perimeter and area of the given diagram. To find out the perimeter and area in the diagram, तो आप देखिए कि नीचे वाला क्या दे रखा है आपको 15 दे रखा है, तो एज इट आपका 15 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपके पास 24 दे रखा है। ठीक है, तो आपस में ये जो साइज है 12 है, 12 को हम 24 में से माइनस करते हैं तो व्हाट वी गेट 12। तो ये वाला और ये वाला हमारे पास में आ गया, इनका सम 12 आ गया। 12 आ चुका आपके पास में इसका सम। ये 15 है पास में तो ये वाला भी 15 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट 12 सेंटीमीटर हो गया ये, देन 15 सेंटीमीटर। अब ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम कितना आया 12 प्लस 12 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, सबको प्लस कर दीजिए, यू गेट 108। क्या आ जाएगा आपस में 108 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका सेंटीमीटर रिलेटेड क्वेश्चन। देन आपके पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड। To find out the area related question, we have to be required length and breadth for that. तो आपके पास में
दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो ये हो गया आपके पास में रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है पास में और ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, हियर लेंथ इंटू ब्रेड। तो 24 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, एरिया 24 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, प्लस इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 24 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 360 प्लस 180। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इन दोनों को आप प्लस कर दो, आपके पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, दैट इज योर 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास में पेरीमीटर हो गया 108 और एरिया हो गया 540 सेंटीमीटर। एंड योर करेक्ट आंसर फॉर दैट इज 108 एंड दैट इज ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. How many stones of 0.50 meter square can be fixed in a courtyard of length 15 meter and width 10 meter? If cost of fixing one stone is 2.50, what will be the expenditure on fixing stone in the courtyard? तो यानी कि आपका एक स्टोन का एरिया दे रखा है 0.50 मीटर स्क्वायर और कोर्ट यार्ड का एरिया दे रखा है आपको 15 मीटर इंटू 10 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें निकाल लेना है कि नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगेंगे। आफ्टर देन हम उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे 2.50 से मल्टीप्लाई करके। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, दैट मीन्स 15 मीटर इंटू 10 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड, एंड एरिया ऑफ स्टोन का हम डिवाइड दे देंगे 0.50 मीटर स्क्वायर का डिवाइड हम इसमें देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे हम इसमें से, तो ऊपर क्या लग जाएगा 100 लगेगा, रिमूव पॉइंट। नाउ यू गेट 150 इंटू 100, 50 से 1 टाइम, 50 से 2 टाइम, तो 300 स्टोन्स हो गए आपके। हाउ मेनी स्टोन्स, 300 स्टोन्स हो गए। अब इसका कॉस्ट निकाल लेना है। कॉस्ट सिंपल है, कॉस्ट इक्वल्स टू 2 रुपीज़ 50 पैसा से हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 को, हम मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 750 रुपीज़, ये आ गया आपस में 750 रुपीज़। योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27. An alloy contains 15% carbon, 25% zinc, rest is copper in 60 kg alloy. alloy जो होता है वो मिक्स होता है 2 या 3 मेटल्स को मिलाकर जो मेटल बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड alloy। एक alloy में कार्बन दिया गया है 15%, जिंक 25% है और कॉपर जो है वो भी दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका कितना कितना है। तो 60 इंटू 15% किसका आपके पास में, कार्बन का, अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज साइन हटाएंगे और कार्बन का केजी आ जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया पास में, 90 अपॉन 10 इक्वल्स टू 9 kg। नेक्स्ट अब पास में आता है जिंक। जिंक का क्या परसेंटेज है, जिंक का परसेंटेज है 25% अपॉन 100 इंटू 60 kg। 60 kg है तो आपस में क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो 150 अपॉन 10 कैंसिल कर दिया आपने, आपस आ गया 15 kg। ये आ गया आपस में जिंक। कॉपर का हमें फाइंड करना है, तो रिमेनिंग जो है वो कॉपर है, तो यानी कि 60 में हम माइनस कर देंगे 9 + 15 करके माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस आपस में हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 36 kg कॉपर।
9 kg कार्बन एंड 9 kg कार्बन, कार्बन यहाँ पे दिया है, कार्बन यहाँ दिया गया है। देन आफ्टर यू हैव जिंक, जिंक इज 15 kg, जिंक 15 kg, 15 kg जिंक, कॉपर 36 kg कॉपर एंड 16 kg कॉपर नहीं है, दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज A. A is your correct answer. Now next question number 27. Fill in the blank. तो 6 21 equals to question mark 7. क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 यहाँ ले जाएंगे तो 6 इंटू 7 अपॉन 21, 7 7 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, और 6 में हम 3 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा 2। योर करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में भी वापिस से आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 और x ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम x को इधर ले जाते हैं, x इंटू 0.01 इक्वल्स टू 1, पॉइंट रिमूव करो 100, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1 को नीचे ले जाइए आप, 1 आ जाएगा। आपके पास में क्या आंसर आ गया 100, यानी कि आपके पास में ऑप्शन हो गया C। C इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 लार्जेस्ट 7 digit number, that is your 9999999, 7 digit largest number, and your option is D. D is your correct answer. Then next, fill in the blank, radius। तो हमें सीधा सा पता है रेडियस अपन क्या होता है, डायमीटर 2 होता है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 2, डायमीटर में 2 का डिवाइड दीजिए तो आपके पास में रेडियस आ जाता है। योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इन 75897 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 ये वाला आ गया 89775, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई इसकी 800। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800, the correct answer is 800. Then next question, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 3। तो डिनोमिनेटर क्या है, किसी फ्रैक्शन से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। देन इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड, तो फ्रैक्शन में यदि हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, 2 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास नया फ्रैक्शन आ जाता है 1/5। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x। अब डिनोमिनेटर को क्या कहा गया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपके पास, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू x + 3 हो गया। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया आपके पास में, तो ऊपर तो आ जाएगा पास में न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर हो गया x + 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, क्या कर रहे हैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में से, तो दैट मीन्स x - 3। और डिनोमिनेटर में क्या कह रहे हैं 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, x + 3 + 2, तो नया फ्रैक्शन क्या बन गया 1/5, न्यू फ्रैक्शन बनाया गया 1/5। तो आप इसको क्या कर देंगे x - 3 और इन दोनों को प्लस करने पर x + 5 हो गया इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × x - 3
इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 5x माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो हमारे पास हो गया 5x, x को हम एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो गया, उधर गया तो x इधर राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। आपस में आ गया 4x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5। अब आता है हमारे पास में फ्रैक्शन क्या था, हमारे पास में फ्रैक्शन था हमारे पास में x प्लस 3 आपका फ्रैक्शन है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 5x की, तो x कितना है 5 और 5 प्लस 3, तो आप पास में हो जाएगा 5/8। योर करेक्ट आंसर इज 5/8, दैट इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Out of 40 students of a class, 60% passed in first division, 30% passed in second division and remaining in third division. Find out the number of students in each category. तो हमें क्या करना है, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट डिवीजन वाले कितने हैं, 40 स्टूडेंट में से 60% फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, तो 60/100 हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, योर 24। सेकेंड डिवीजन वाले कितने हैं, दैट इज योर 30%, 40 इंटू 30/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 12। रिमेनिंग क्या है पास में, रिमेनिंग 60 में से 40 में से टोटल स्टूडेंट्स आपस 40 में से हम 24 प्लस 12 को माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 36, व्हाट यू गेट 4 स्टूडेंट इन थर्ड डिवीजन। ये कौन से डिवीजन वाले हैं, थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो 24 12 एंड 4, 24 12 एंड 4, योर करेक्ट आंसर इज A. Next question, that is your 34. A shopkeeper sell a box costing 900 rupees, giving 15% discount. Find out the sale price of the box. तो हमें क्या करना है, इसका सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। तो SP इक्वल्स टू, ये क्या है MRP, MRP है, मार्केट प्राइस लगा रखी है 900 रुपीज़, उस पर डिस्काउंट मिलता है आपको 15% का, यानी 100 रुपये में से 15% डिस्काउंट अपॉन 100। MRP 900 इंटू 85 अपॉन 100, यू मल्टीप्लाइड 85 इंटू 9, 765, and your correct answer is, your correct answer is A. Now your next question, that is your 35. The HCF and LCM of two numbers is 18 and 252 respectively. If one number is 126, find the other number. तो हमें अदर नंबर पता लगा लेना है। तो अदर नंबर का क्या है, अदर नंबर फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। हमारे पास आ गया पास में 18 इंटू 252 अपॉन फर्स्ट नंबर 126, 1 टाइम 2 टाइम, योर नंबर इज 36. The correct answer is 36. Now next question 36, HCF हमें फाइंड करना है इसका। तो HCF हमारे पास डायरेक्टली हम देखते हैं तो 10 इसका HCF है, लेकिन हम इसमें डिवीजन मेथड में 20 3 टाइम्स 60 वी गेट 10 एंड 20 2 टाइम्स 20, दैट मीन्स आपका HCF क्या हो गया 10 हो गया, एंड योर करेक्ट आंसर इज
A option is your correct option. Now 37. A person earns 15 rupees per hour for his work. If he works 8 hours a day for 5 days, his total earning. Now हमें क्या पता है, 1 day equals to 8 hours वर्क कर रहा है, 8 hours वर्किंग है, तो 5 hours में 5 days में कितनी वर्किंग हो जाएगी? How many hours he work in 5 days? 5 days equals to 8 into 5, 40 hours working. तो टोटल अर्निंग क्या होगी? टोटल अर्निंग एक हार का मिलता है उसको 15 रुपीज़, तो 40 इंटू 15 आप पास में आ गया 600 रुपीज़। तो क्या अर्निंग कर रहे हैं? 600 रुपीज़ की अर्निंग हुई 5 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38. द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ए रूम ऑफ साइज 3.6 इंटू 4.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा पास में? नंबर ऑफ टाइल्स। फॉर्मूला क्या है पास में? फॉर्मूला पास में एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। स्क्वायर टाइल है आपका, एरिया ऑफ फ्लोर तो हो गया लेंथ इंटू ब्रेड, और स्क्वायर टाइल का होता है साइड इंटू साइड। आप पास में आ गया 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा पास में? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो ऊपर है मीटर और नीचे है सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 300 सेंटीमीटर हो गया, 360 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। कॉमन हो चुका है, अब हम इसमें डिवाइड दे देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कैंसिल हो जाएगा, और आपस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 15 का डिवाइड देंगे 2 और 4 इंटू 3 टाइम्स। A bus starts from Delhi to Amritsar 5:30 p.m. on a day and reaches Amritsar at 7:36 a.m. the next day. 5:30 a.m. से लेके p.m. से लेके हम क्या करेंगे? 12 o'clock midnight तक का टाइम क्या डिफरेंस होएगा? ये आप पास में 12 में से 5:30 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 6 hours 30 मिनट। और अगले दिन कितने बजे पूछ रही है? 7 hours, ठीक है, 36 मिनट पे पहुंचती है। तो यहाँ पे हो गया 6 मिनट, क्योंकि हमें पता है कि 66 मिनट्स में से 60 माइनस करने पर 1 आवर कन्वर्ट हो जाता है और 6 मिनट्स लेफ्ट रहती है, ठीक है। तो 1 आवर इधर आ गया आपस में हो गया 14 आवर्स और 6 मिनट। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय स्टूडेंट सी एंड डी, सी और डी टुगेदर बाय स्टूडेंट ए बी ई। इन दोनों के स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए गए हैं। इन ग्रुप के द्वारा सी प्लस डी, सी का हो गया हमारे पास में 14 और डी का हमारे पास में हो गया है 8। डी इज 10, डी का 10, टोटल हो गया 24। देन हमारे पास ए प्लस बी प्लस ई, ए का हमारे पास में हो गया है ऑप्शन 4 प्लस आपके पास में बी का 8 प्लस 8 20। डिफरेंस निकाल लीजिए 4। योर करेक्ट आंसर इज 4। देन क्वेश्चन नंबर 41 इन ए डिवीजन सम
if the divisor is 51, quotient is 16 and the remainder is 27, find the dividend. तो क्या करेंगे, डिविडेंड को पता लगाने का फॉर्मूला है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स 51 मल्टीप्लाई 16 प्लस 27 and you get here 51 multiply 16 630, then 1 or 5 6 1 8 816 plus 27 843 and your correct answer is A. Now next question, फैक्टर्स. व्हाट यू टू फाइंड आउट, फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 42 में. तो 30 के फैक्टर्स नंबर का डिवाइड जाएगा. तो 30 में 2 का, देन इट इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज डिविजिबल बाय 5, देन इट इज डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय 15 एंड इट इज डिविजिबल बाय 30. तो इसमें 30 के अलावा भी और किसी नंबर का डिवाइड जा रहा है तो 10 का भी डिवाइड जाता है इसमें. तो 2 3 5 6 10 15 30. योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट नंबर 2 टर्म्स ऑफ द नंबर पैटर्न. तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें इसमें नंबर पैटर्न की बताना है. 234 345 आर. तो 1 2 3 2 3 को लिख दिया और इस 3 का नेक्स्ट 4 करा. देन 2 3 4 2 3 4 को लेंगे, 3 4 ले लेंगे 2 3 4 में से, और 4 का नेक्स्ट डिजिट होता है 5. अगला आपके पास में 3 4 5 दोनों लेंगे, 4 5 ले लेंगे, और 5 का नेक्स्ट डिजिट होता है 6. 4 5 6 इज योर करेक्ट आंसर. इसका अगला ऑप्शन इसी में आगे देखेंगे तो ये 2 डिजिट लेंगे 5 6 एंड 6 के नेक्स्ट होता है 7, यानी कि आपके हो गए 4 5 6 एंड 5 6 7. योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, the product of two number is 8192. If one number is double the other, find the smaller number. तो क्या मान लेंगे, नंबर्स आर, एक x है तो दूसरा उसका डबल 2x हो जाएगा. तो दोनों को प्लस कर लीजिए, आप पास में कितना आ गया 81. प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, नॉट क्वेश्चन नंबर 14. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192. इफ वन नंबर इज डबल द अदर, द स्मॉलर नंबर इज. तो लेट नंबर्स आर, x हो गया एक नंबर, दूसरा डबल हो जाएगा इसका 2x. इन दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 2x इंटू 2x इक्वल्स टू 8192. तो ये हो गया 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है 8192. एक्स स्क्वायर यहीं रह जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4096. तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4096 जो होता है वो आपका 64 का स्क्वायर होता है. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल्स टू 64. योर करेक्ट आंसर इज 64. The smallest odd number formed by using the digit. इन डिजिट्स का यूज करके सबसे छोटा नंबर हमें बनाना है. तो 1 0 3 4 5 is the smallest number and your answer is A option. Question number 46. Simplify.
यानी सिंप्लीफिकेशन हमें इसमें करना है। और सिंप्लीफिकेशन में आप देखिए 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। तो अगर आप एलसीएम लेके करना चाहते हैं तो एलसीएम करें, पॉइंट डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। तो आप पास में यहाँ हो गया 1000, तो ये हो गया आपस में 1000, देन 10 का डिवाइड 100 टाइम्स 100, 10 टाइम्स, देन 1 टाइम, सबको प्लस करें 1 1 1 1/1000 आफ्टर 3 पॉइंट, यानी कि आपस में आ गया ऑप्शन बी is your correct answer. Next question number 47. The sum of the greatest and the smallest number of 4 digit is. तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का आपको सम करना है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपस में 1000 और ग्रेटेस्ट होता है 9999। दोनों को आप सम कर दीजिए, आपस में आ जाएगा दिस नंबर। ये नंबर आ गया और आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 10,999। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. How many times will the digit 9 occurs in writing number from 1 to 100? 1 to 100 के बीच में 9 कितने टाइम्स आता है? तो देखो 1 से लेके 100 तक, 1 से 10 तक में कैलकुलेशन में देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 के बाद में आएगा 19, देन 29, देन 39, देन 49, देन 59, 69, 79, 89, देन 89 के बाद में आ जाता है आपस में 90। 90 के बाद 91 से लेके आपके पास में 99 तक, 99 आपके पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपस में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपस में ये हो गए 10 9 हो गए, और 91 से लेके 99 तक कितने हो गए अगेन 10 हो गए। 99 से लेके 90 तक टोटल आपस में हो गए 29। योर करेक्ट आंसर इज 20, बट ऑप्शन इज नॉट गिवन हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 bells rings at interval of 12, 15, 18 seconds respectively. If they start ringing together at 8:35 am, at what will they ring together again at the earliest? तो हमें क्या चाहिए, हमारे को इसमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम क्वेश्चन नंबर 49, 3 bells ring at interval of 12, 15 and 18 seconds respectively. If they start ringing together at 8:35 am, at what will they ring together again at the earliest? तो यानी कि ये सभी बेलें एक साथ 8:35 am पर बजती हैं, तो अब दोबारा कब एक साथ बजेंगी? तो हमें क्या चाहिए एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 15, 18। तो एलसीएम क्या होगा 12, 14, 15 का 12, 15, 18 का एलसीएम हमें निकालना है 6, 15, 9, 2, 3, 15, 9, 3, 1 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1। एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 180 सेकेंड्स के बाद में बजेंगी। 180 सेकेंड्स हो गया। 180 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होती है, 60 का डिवाइड देंगे 3 मिनट्स के बाद में एक साथ बजेंगी। तो दैट मीन्स 8:35 में हम प्लस करेंगे 3 मिनट्स एंड वी गेट 8
8:38 AM। तो वापिस से कब बजेंगी? 8:38 पे। योर करेक्ट आंसर इज 8:38 AM। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर? कौन सा क्वेश्चन है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है? You all know that what do you mean by the ascending order? Bigger to smaller or smaller to bigger? Smallest to largest. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हमें अरेंज करना है। तो आपके पास में देखिए 1 में 3 का डिवाइड देते हैं तो 0.33 आता है, देन 0.5 आता है और देन आता है 0.25 दे रखा है। तो असेंडिंग में क्या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है, लेकिन ये छोटा हो गया है, ये पॉसिबल नहीं है आपका। देन नेक्स्ट 0.25, देन 0.5, देन 0.33। अगेन यहाँ पर आप देखिए कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करते समय ये बड़ा है, देन ये वाला छोटा हो गया, तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट 0.25, 0.33 and 0.5, that means your answer ये करेक्ट है and your option is C. For any query you can call me on my number, that is 8769422006 for online classes, for live classes, for test series and for offline classes in required hostel school coaching. Then call me on my number 8769422006. Thank you for watching Royal Defense Academy YouTube चैनल। रीजनिंग का पेपर का लिंक अलग से दे दिया गया, इसी में ही अब अगला पेपर जो है आपका है वो है रीजनिंग का। और रीजनिंग का अगला पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप वॉच करिए। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीजनिंग पेपर इन next video. Thank you.